Very good evening, आप सबको. May I request one thing that if you all can start your camera, it will be much fun to interact. Thank you very much, Mr. Mayur. PD साहब कैसे हैं? So we have PD and Yogesh both. Very good, yeah. अनुपम भाई है, मिस्टर नारायण नंबियार, सुहास भाई कैसे हैं? Good evening. राजन कंदोई है. Another sir yet waiting to start the camera. Acha. So we will not wait for others to join. We will start. And let me share my screen and we start our discussion from there. Hello. Yes, one more thing. We will request you to please rewrite your name as your name, then slash and your company name, so that we can identify properly. और हाजिरी लिखा जा सके कौन आया था और कौन नहीं आया था. So very good evening. I have got two good news to share with you. First is एनजे को ना अभी वो ग्रीन टिक मिल गया है, आज ही मिला है. So बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि व्हाट्सएप में ग्रीन टिक होना चाहिए. So here we have एनजे IT Solutions Limited और ग्रीन टिक के साथ. और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको ग्रीन टिक मिलता है, दिखता है. So that was one good news which I wanted to share with all of you. And let's move on. दूसरा गुड न्यूज है एंड दैट इज, अच्छा ये जो ग्रीन टिक मिला है ना, उसके साथ साथ आई वुड आल्सो लाइक टू शो यू हाउ डज आवर व्हाट्सएप मैनेजर ऑन फेसबुक लुक्स लाइक. सो इट लुक्स लिटिल बिट लाइक दिस. So we can send 1 lakh messages in a day. Quality ratings are high and status is connected. So all good and good and good. We just have to maintain the discipline while sending the WhatsApp messages and that's it. Then everything is smooth. So many times people are worried, green tick क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो green tick आराम से मिल जाता है, कोई गड़बड़ नहीं है. Because giving a green tick is going to increase revenue of WhatsApp. So they are in fact more interested to give green tick. Okay. So we just have to follow that discipline and nothing else. And another thing is that we recently launched our new And by the way, you can visit telecloud.in if at all you are interested in demo. ये आज के वेबिनार का विषय नहीं है, but I just wanted to share if any one of you is interested to visit. It's happening on 16th June, 3 p.m. And that also happens to be birthday of Mr. Chaitanya Parekh. आप वेबिनार में जाके भी उसको विश कर सकते हैं. He will be taking this webinar. And let's move on to the next topic. So WhatsApp Business API, what it is and what it means, what are the costs and what is the framework or infrastructure required. So बहुत कुछ लिखा है. What I will do is I want to stop sharing, क्योंकि शेयर करके रखूंगा तो आप लोग वो पढ़ने में बिजी हो जाओगे. मैं चाहता हूं कि हम लोग बात करें. ठीक है. So पहला मुद्दा ये है कि WhatsApp allows you 1000 messages in a month. तो that is free. एक महीने में आप 1000 मैसेज भेजते हैं तब तक कोई चार्ज नहीं है. ये व्हाट्सएप के एपीआई का चार्ज है, उसकी बात कर रहे हैं. उसके बाद ना व्हाट्सएप के एपीआई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है
कि you need a Docker to communicate with WhatsApp servers, and then that Docker provides the API. तो इसकी वजह से क्या होगा कि we need a vendor who will have that Docker technology to talk with WhatsApp servers. Generally, these people are called BSP, Business Solution Provider. इंडिया में गपशप, इन्फीबीम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. इंटरनेशनल में डायलॉग 360 या वाटी, ऐसे लोग हैं जो BSPs है, या ट्विलियो है. दीज आर BSPs. Then third part of component, or third component of technology that we require is team inbox, because once you have your number on WhatsApp business API, you cannot use the app. तो ऐप तो मिलता नहीं है, तो आप भेजने के लिए API यूज करोगे तो कोई भेजेगा तो आपको कहाँ दिखेगा, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा. It cannot happen that everything is happening on the automated mode only. You will any which ways have to interact with your customers. So then you need that team inbox. ये team inbox भी किसी के पास से लेना पड़ता है. उसके बाद फिर क्या होता है, you want to send broadcast. Let's say you want to send message to 1000 people or 10,000 people or 1 lakh people. Now, if you want to send message to this many people, you need to get the templates approved from WhatsApp. And then you need that UI from wherein you can do this broadcasting. Now that is also chargeable. तो broadcast और message approval functionality है, उसका भी monthly charge होता है. Then there are some of the vendors who provide drip marketing or campaign, as we call in Sangam CRM. तो अगर आपको कैंपेन करना है तो उसका अलग से चार्ज होता है. These are generally add-ons. स्टैंडर्ड पैकेज में वो नहीं आता है. उसके बाद if you need chatbot functionalities, most of the time that plan is the upper tier plan. मतलब जो नीचे वाला प्लान है ना, उसमें चैटबॉट का फंक्शनैलिटी नहीं आता है. मैं आपको कुछ प्लान ओपन करके भी बताता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि ये लोगों के प्लान में दिख कैसे रहे एंड हाउ आर दोस प्लान्स वर्किंग. जैसे एक वाटी का प्लान है विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, एंड देन देयर इज डायलॉग 360. ये भी यूज करने वाले बहुत है, इंडियन प्लेयर्स भी बहुत है, लेकिन ये दो बहुत प्रोमिनेंटली चलते हैं. सो इफ यू लुक एट दिस 360 डायलॉग का जो प्राइसिंग का पेज है, तो उसमें कैसा आ रहा है कि 99 यूरो और 49 यूरो मंथली चार्ज है, राइट. एंड इफ यू गो हियर इट सेज व्हाट्सएप सेशन मैसेजेस और कन्वर्सेशंस अनलिमिटेड. तो आपको लगेगा कि कितना भी मैसेज भेजो पैसा नहीं देना है, लेकिन इफ यू गो बिलो हियर यू हैव मेंशन्ड वी नेवर चार्ज एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप फीस विल बी पास्ड थ्रू. मतलब व्हाट्सएप वाले का चार्ज है ना, वो आपको देना है. तो ये मुद्दा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट्सएप वाले का चार्ज हमें देना है. तो ये एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर है. और दूसरा एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर ये वाटी वैसे किसी लोगों का है, तो उनका भी इस तरह से कि 5 यूजर का इनबॉक्स मिलेगा, चैटबॉट मिलेगा, एंड ऑल दिस स्टफ यू गेट फ्रॉम देयर. ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा. अच्छा, जो हमने फेसबुक का प्राइसिंग का बात किया था, उसका ये पेज एक बार ओपन कर लेते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट इट कि ये फेसबुक का प्राइसिंग कैसा है, मतलब व्हाट्सएप का क्या चार्ज देना पड़ता है. पहले कैसा था कि ओनली व्हेन यू वांट टू सेंड मैसेज इट वाज चार्ज, इफ कस्टमर इज सेंडिंग मैसेज इट वाज नॉट चार्ज. Now what they have done is they mention a 24-hour conversation. Means if I send one message to Toshniwal ji or Toshniwal ji sends me one message, for next 24 hours that will be considered as one conversation and I will be charged only for one conversation. So ये जो 0.48 पैसे है या 0.29 पैसे है ना, that is cost of one conversation, which means that if the session is initiated by the user, let's say in this example Toshniwal ji, then I have to pay 29 paise. And if session is initiated by me, if I send some template and then the dialogue is initiated, then I have to pay 48 paise. But let me tell you that no one is charging 48 paise and 29 paise. Generally people charge between 60 paise, मतलब 48 का वो लोग 65-68 पैसे करते हैं, और जो 29 मतलब 30 पैसा उसका 50-52 पैसे करते हैं. So there is generally 20 पैसे का मार्कअप इन दिस. बहुत सारे लोगों का है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. और क्या क्या चाहिए अपने को कि चैटबॉट का फंक्शनलिटी चाहिए, तो उसका मंथली कॉस्ट है. जैसे इसमें है, आप देखेंगे ना, तो किसी किसी प्लान में चैटबॉट नहीं होता है, फिर चैटबॉट लेने के लिए आपको अलग से लेना पड़ता है. तो उस तरह से चैटबॉट कैन बी एडिशनल कॉस्ट.
दूसरा मुद्दा ये है कि चैटबॉट बनाने का काम जो है ना, ये सी वी हैव बीन क्रिएटिंग दिस चैटबॉट फॉर लास्ट 6-7 ईयर्स। तो बेसिक तो इतना समझ में आया है कि किसी भी व्यक्ति को चैटबॉट बनाना ना, ही विल रिक्वायर सम टाइम एंड ए वेरी स्टीप लर्निंग कर्व। मतलब कन्वर्जेशनल यूआई बनाना ना, इट इज वेरी डिफरेंट गेम। ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, क्योंकि अलग है ना, तो अपने को उस मोड में आने को टाइम लगता है। मुझे जल्दी समझ में नहीं आता है कि कितना करना है और कहाँ जाके अटकना है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नीड ए कंसल्टेंट हु विल डिजाइन एंड क्रिएट ए चैटबॉट फॉर यू। और चैटबॉट भी दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैटिक चैटबॉट, मतलब कि इफ यू टेल गिव मी प्राइसिंग एंड आई विल गिव यू प्राइसिंग, इफ यू टेल शो मी वीडियो एंड आई विल शो यू वीडियो। जैसे एनजे में से आपको अब तक जितना दिखा है उसमें दीज आर ऑल कॉल्ड स्टैटिक चैटबॉट। देन देयर इज ए डायनामिक चैटबॉट। आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो सजेशंस भेजे ना, ये डायनामिक चैटबॉट के हैं। तो डायनामिक चैटबॉट में कैसा होता है कि लेट्स से यू सेंड ए मैसेज फ्रॉम योर रजिस्टर्ड नंबर that you want to see tickets. Now I show you number of open tickets. Then you select one particular ticket and I show you the status of that ticket. This is called dynamic chatbot. ठीक है, तो ये जनरली ना कॉस्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये सब के बाद इफ वी वांट टू इंटीग्रेट दैट इनटू सीआरएम, दैट इज ऑलवेज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो कितना कॉस्ट आता है, दैट जनरली डिपेंड्स ऑन व्हाट वी वांट टू डू। तो मेजॉरिटी सीआरएम वाले ऐसे कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपको चाहिए ना वैसा हम करके देंगे, एंड देयर विल बी ए कस्टमाइज्ड कॉस्ट एवरी टाइम फॉर एवरी कस्टमर, राइट? बट मेनी सीआरएम हैव स्टैंडर्ड कनेक्टर्स। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्लानिंग टू क्रिएट ए कनेक्टर। काम चालू हो गया है, वी विल सून रिलीज इट। तो कनेक्टर में आउट ऑफ द बॉक्स क्या क्या आएगा? पहला चीज ब्रॉडकास्ट का फैसिलिटी आएगा, मींस ब्रॉडकास्ट एंड कैंपेन बोथ। ब्रॉडकास्ट कैंपेन मींस ड्रिप मार्केटिंग, ये वाला। देन बेसिक चैटबॉट का फंक्शनलिटी आएगा, मतलब स्टैटिक वाला। नोटिफिकेशन आएगा, ये भी स्टैटिक वाला। ठीक है, एंड जो कस्टमाइज करना है तो वी आर जिस तरह से हम बना रहे हैं ना, तो कस्टमाइजेशन करना बड़ा सिंपल रहेगा, मतलब बहुत मुश्किल नहीं होगा। ऑफ कोर्स फॉर कस्टमाइजेशन वी नीड प्रोग्रामिंग नॉलेज, बट वी आर मेकिंग इट इन अ सच वे दैट इट इज वेरी सिंपल। अब ये स्टोरी जो मैंने आपको बताया ना, ये अब तक था। अब सीन चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? 22 मई को मेटा, जो पहले फेसबुक हुआ करता था, उन लोगों ने कुछ नए अनाउंसमेंट किए। हम लोग ये सारे लिंक्स आपसे शेयर करेंगे अपना इवेंट खत्म होने के बाद। सो डोंट वरी अबाउट रिमेंबरिंग द लिंक्स और कॉपिंग द लिंक्स, वी विल शेयर ऑल द लिंक्स विथ यू, तो आपके लिए इजी रहेगा। ये पूरा उसका प्रेजेंटेशन है 1 घंटा 20 मिनट का। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस, देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग आइडियाज इसके अंदर। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये हुआ है कि ना अभी व्हाट्सएप एपीआई क्लाउड एपीआई के फॉर्मेट में आएगा। हम ये वीडियो देख Wish you could be a lead engineer at Google? You can by joining Interview Kickstart, the #1 tech interview. Any business of any size around the world with WhatsApp Cloud API. In just a few minutes, any business or developer can easily access our service, build directly on top of WhatsApp to customize their experience and speed up their response time to customers by using our. ये भाई साहब के बोलने का मतलब है कि इफ यू आर यूजिंग क्लाउड एपीआई, आपको ना ये बीएसपी के पास जाने का जरूरत नहीं है। नाउ यू डोंट नीड दैट डॉकर सिस्टम एंड एवरीथिंग। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लाउड एपीआई को हम डायरेक्टली बातचीत कराते हैं और अगर सीआरएम से हम लोग बात कराते हैं, ठीक है। सो पहला तो ये हुआ कि जो ये 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 हजार रुपया लोग पर मंथ चार्ज करते हैं, वो निकल गया। उसमें क्या क्या मिलेगा अपने को? जैसे हमने देखा कि सीआरएम में इंटीग्रेशन में क्या क्या आ रहा है, तो ब्रॉडकास्ट आ रहा है, चैटबॉट आ रहा है। चैटबॉट स्टैटिक और डायनामिक दोनों आएगा प्रोग्रामिंग करने के बाद। तो कैंपेन्स आ रहा है और नोटिफिकेशन का ऑटोमेशन आ रहा है। इसका मतलब कि एक चीज नहीं आ रहा है, टीम इनबॉक्स। बराबर है, बिना टीम इनबॉक्स के अगर सीआरएम ने मैसेजेस भेज भी डाले, तो फ्रॉम वेयर यू विल मॉनिटर हु इज रिप्लाइंग whenever you want to respond something on a manual basis? How will you manage that? So that's a big problem. Now there is some good news for that also, और ये गुड न्यूज देखते हैं। तो ये ना एक मेटा बिजनेस सूट करके एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक वालों का, ये अभी भी है।
मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट लुक्ड इनटू इट। मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिखता कैसा है, ठीक है, और इसकी रिलेटेड ही गुड न्यूज है। तो जैसे ये एक पूरा इनबॉक्स है, देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टफ्स हियर, लेकिन ये इनबॉक्स है। इसमें क्या होगा कि मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, फेसबुक के कमेंट्स, फेसबुक का मैसेंजर, ये सारा चीज मुझे एक ही जगह पे दिखता है। एवरीथिंग इज हियर। और इस जो फेसबुक का बिजनेस अकाउंट हमने बनाया है, इसमें जितने भी लोग अभी हमने असाइन किए हैं वो सब इधर है। दैट मीन्स आई कैन ऑल्सो असाइन द कन्वर्सेशंस टू पीपल। इसका एक एडवांटेज ये है कि इफ यू इंटीग्रेट दिस विद सीआरएम, ये जो साइड पे प्रोफाइल दिख रहा है ना आपको, इस प्रोफाइल में मैं सीआरएम से डेटा फेच करके यहां भर सकता हूं, ठीक है। ये सब कल का कल नहीं आने वाला है, सो डोंट स्टार्ट इमेजिनिंग क्या बन सकता है। ये आई वांट टू शेयर विथ यू एंड देन आई वांट योर फीडबैक, इसलिए ये हम लोग आइडिया शेयर कर रहे हैं आज आपके साथ। सपोज आई वांट दैट दिस इज गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय तौफिक, सो आई विल सिलेक्ट दिस एंड से असाइन। सो दिस इज नाउ असाइन टू तौफिक। तौफिक जब लॉगिन होगा ना तो उसके इनबॉक्स में दिखेगा, ठीक है, कि भाई ये कन्वर्सेशन तुझे हैंडल करना है, राइट। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ये एक बार देखने लायक है। और इसका एक है ना इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। आई वांट यू टू सी द अनाउंसमेंट। This account to Facebook, you'll also be able to start conversations there. You can similarly configure your Instagram profile to add a message or WhatsApp button. Second, use efficiency tools and Meta Business Suite to help your business scale. Meta Business Suite is built for businesses managing higher volumes of messages or across multiple platforms. It allows you to manage all of your activities across Facebook, Messenger, Instagram, and soon WhatsApp in. ये बहन जी ने क्या बोला सुना आपने? एंड सून व्हाट्सएप। थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं, वापस एक बार सुन लो कि क्या बोलना चाहते हैं। Page info. Then you can define your action button or CTA and even automatically to messages. From the inbox, is across Facebook, Messenger, Instagram, and soon WhatsApp in one place. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक या मेटा इज सून गोइंग टू रिलीज इनबॉक्स फॉर दिस अकाउंट्स, ठीक है। जो ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज करते हैं ना उनके लिए, वो मतलब कैसा दिखेगा? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। ये जो यहाँ सारे दिख रहे हैं ना, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स, चैट प्लगइन, इसके बाजू में व्हाट्सएप भी आ जाएगा। एंड इफ यू हैव मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट्स वो भी आ जाएगा। सो देन वी हैव एवरीथिंग इन वन प्लेस। एटलीस्ट मेटा का जो है ना वो एक प्लेस में आ गया। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू कि इससे क्या हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बनाना चालू कर दिया। दिस आई ऑलरेडी शेयर विथ यू, तो ये गुड न्यूज नहीं है, यू ऑलरेडी नो दिस। एंड इन लास्ट 2-3 weeks आई हैड आस्क्ड यू रिगार्डिंग योर सजेशंस कि क्या क्या होना चाहिए, आपका क्या इच्छा है। तो आप में से कुछ लोगों ने शेयर किया था, जैसे तोषनीवाल जी ने शेयर किया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने जितना शेयर किया ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। मेजॉरिटी लोगों ने जो रिक्वायरमेंट बोला है, दीज आर डायनामिक। तो जो डायनामिक है वो डायनामिकली भी बनाया जा सकता है। इट इज जस्ट दैट ये ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधा सीधा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट हैज टू बी कोडेड, इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड। और मैंने पता लगाया सब सीआरएम में ऐसा ही है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप टेम्पलेट डिजाइन करते हैं, ऐसा बहुत लिमिटेड है, बिकॉज ईच एंड एवरी सिनेरियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वांट टू लेट्स से ये करना है, ट्रेड कंफर्मेशन करना है, तो दिस कैन बी सिंपल, क्योंकि आपने सीआरएम में ट्रेड का एंट्री डाला है तो कंफर्मेशन का मैसेज जाना है, तो वो टेम्पलेटाइज्ड हो सकता है। फिर ये जो इंटीमेशन, कुरियर रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है, दिस ऑल कैन बी टेम्पलेटाइज्ड। व्हेनेवर यू वांट टू सेंड सम पीडीएफ और सम डॉक्यूमेंट लाइक दैट, तो उसका कस्टमाइजेशन लगेगा, ये पक्का बात है, ठीक है।
देन ये वाला जो था कि इफ वी आर सेंडिंग ईमेल, we just want to send a notification on WhatsApp that as email has been sent to you on this email ID from our this email ID, so please check and confirm. ठीक है, तो वो भी टेम्पलेट से ही जा पाएगा. यू माइट नॉट रिक्वायर कस्टमाइजेशन फॉर दिस. ये माइट वर्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आप लोगों का भी आइडियाज और मैच्योर होगा एंड देन नया नया रिक्वायरमेंट खुल के आने लगेगा. फिर मीरा मैडम ने शेयर किया था कि कोट भेजना है, कोटेशन व्हाट्सएप पे भेजना है, कस्टमर को मैसेज करना है, देन रिमाइंडर्स भेजना है. वी विल हैव टू बी मच मोर स्पेसिफिक ऑन दिस, क्योंकि जब भी आप कोड लिखते हो ना तो इट इज एग्जैक्टली ऑन द कंडीशंस. मतलब ये हुआ तो ये करना है, ऐसा हुआ तो ये भेजना है, और वैसा हुआ तो वो भेजना है, थिंग्स लाइक दैट. तो जब भी इतना डिटेल में प्लानिंग करना है ना, तो सेंडिंग रिमाइंडर टू कस्टमर खाली इतना बोलने से नहीं चलेगा. वी विल हैव टू राइट मच मोर डिटेल्स. उसके बाद गिलबर्ट भाई है, उन्होंने शेयर किया था कि वी वांट टू सेंड प्रोडक्ट कैटलॉग, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, न्यू ऑफर्स एंड एवरीथिंग. ऑल दिस विल आल्सो बी पॉसिबल. फिर संदीप भाई है वार्मेक्स से, उन्होंने कहा था कि अपने को कस्टमर्स को रियल टाइम में अपडेट करना है कि नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो क्या होगा, देन कन्वर्सेशंस होंगे वो यहाँ दिखेंगे वगैरह, वो सब दिख जाएगा. क्योंकि अभी तो वही है ना, सीधा मेटा बिजनेस सूट है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है. सो दैट इज वन सिंगल कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग. फिर ग्रीटिंग्स भेजने हैं बर्थडे के और वो सब, ये भी भेज सकते हैं. इधर है ना, मेरा एक सजेशन है, डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एज माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई नो दैट आई मे बी रॉन्ग. अगर आप मेरे को बर्थडे विश करना चाहते हो ना, तब मेरे को फोन करो, बात करो, ठीक है. अगर इतना ही पर्सनल रिलेशन है तो. क्या हुआ था पता है, मालूम है, मोदी साहब नए नए प्रधानमंत्री बने ना, तो मेरे बर्थडे के ऊपर है ना, मुझे पहले पोस्ट कार्ड आया था, फिजिकल पोस्ट कार्ड. तो मैं तो ऐसा पागल हो गया था, उसका फोटो निकाल के सबको शेयर किया, अड़ोस पड़ोस को बताया, मेरे घर में सबको बताया कि देख अपने को सीधा प्रधानमंत्री पहचानता है. उसके बाद से ना वो ईमेल में आने लगा, और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मोदी काका मेरे को जानते ही नहीं है, राइट. वो ऐसे ही मुझे कोई वहां से भेजा, बैठा हुआ है आदमी, ऐसा आदमी भी नहीं बैठा हुआ है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है विच इज जस्ट सेंडिंग ईमेल्स टू पीपल. उसमें से मैं एक हूँ, ठीक है. तो वो जो चार्म था ना कि आई रिसीव्ड ए बर्थडे ग्रीटिंग फ्रॉम समबडी, वो चला जाता है. दूसरा सिनेरियो हो सकता है, लेट्स इमेजिन आई सेंड यू ए बर्थडे ग्रीटिंग, और कल ही ना ऐसा हुआ था कि आपका मेरे ऑफिस के किसी मेंबर के साथ झगड़ा हो गया था सपोर्ट को लेकर, तो क्या असर होगा वो बर्थडे ग्रीटिंग का? इट विल बैकफायर. सो मेरा ऐसा मानना है कि ग्रीटिंग्स और ऐसी चीजों को ऑटोमेट करने में थोड़ा सा सोचना चाहिए. अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, वी हैव रिसीव्ड दिस ग्रीटिंग वाला रिक्वेस्ट फ्रॉम मेनी कस्टमर्स. तो बहुत से जन का ऐसा होता है कि आई हैव गॉट डेटाबेस ऑफ 10,000 पीपल एंड आई वांट टू सेंड ग्रीटिंग्स टू देम, बर्थडे वाला. वी सेड गुड, बर्थडेट्स है क्या उनके? तो बोले सर वो नहीं है. ये बड़ा प्रॉब्लम है, आगे जाके हम ये प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दिस वी विल हैव टू ऑल अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवरसेल्व्स फॉर. फिर ये राजेश भाई ने लिखा है, वो भी अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी एक बार बन गई और सेव हो गई तो वी कैन हैव अपडेटेड डिटेल्स टू द कस्टमर एज वेल एज द सेल्स पर्सन एंड ऑल्सो द मैनेजर. ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इसके लिए क्यों खर्चा करोगे यार? आपके मैनेजर के पास भी ऐप है अपना संगम CRM का, वो उसमें भी OPR डैशबोर्ड पे देख सकते हैं. तो मेरे ख्याल से अपने टीम को नोटिफिकेशन देने के लिए जब भी अपना ही CRM से देखना है तो व्हाट्सएप से अलग नहीं भेजना चाहिए. See, this is a cultural issue, I think, which we can solve. कि अगर मेरा रोल ही सेल्स मैनेजमेंट मैनेजर का है, तो इट इज माय ड्यूटी, माय केयर है टू चेक व्हाट माय टीम मेंबर्स आर डूइंग एंड वेयर दे नीड माय हेल्प. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इसमें भी जो कुछ लिखा है ना, ये सब कुछ किया जा सकता है, नॉट ए बिग डील. फिर कनक सिंह जी ने लिखा है कि बटन मैसेज और कॉल टू एक्शन बटन, ये स्टैंडर्ड फीचर्स है उसके, तो इसमें कुछ अपने को ज्यादा सोचना जैसा नहीं है. कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, ऐसा जय भाई ने लिखा है. यस, यू कैन डू दैट ऑल्सो. क्लाइंट को कंफर्मेशन भेजे कि भाई तेरा टिकट मिल गया है, और टिकट का अभी ये कर रहे हैं ना, तो कस्टमर एक्सपेक्ट क्या करेगा ना, थोड़ा और सोचना चाहिए, राइट. जैसे कि
जब हमको अमेजोन से ये मैसेज आता है कि यूर पार्सल हैज बीन डिस्पैच्ड, उसके साथ ही ये भी आता है कि कब मिलने वाला है। तो अगर हम कस्टमर को टिकट मिल गया है ये बता रहे हैं ना कि भाई आपका कंप्लेंट मिल गया, हमको मालूम है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो शुड इन्फॉर्म देम कि व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग टू सॉल्व दिस। इससे वो रिलेशन थोड़ा डिलाइटफुल होगा, ठीक है, और फिर सॉल्व हो जाता है तो हम उनको बता सकते हैं। ये माता साहब ने जो लिखा है उसमें का भी बहुत कुछ पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने जो लिखा है ना उसमें मैक्सिमम कस्टमाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। बाय द वे दे आर ए लीगल फर्म एंड दे हैव वेरी एलॉबरेटेड प्रोसेसेस फॉर एवरीथिंग। वो अपना जो पेटेंट और वो सब होता है ना उनका काम करते हैं, जो बहुत बड़ा टीम है एंड देयर इज वेरी एलॉबरेट प्रोसेस डिजाइन फॉर इट। फिर श्रेया मैडम ने लिखा है ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई मतलब किसी चीज में ना ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, खाली कुछ वक्त और कुछ कुछ जगह पे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला है, बट दिस आर पॉसिबल, 100% पॉसिबल। थोड़ा सा आगे सोचने का जरूरत है, आगे क्या सोच सकते हैं, तो ये हमने हमारे तरफ से लिखा है कि और क्या हो सकता है। हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, जो यूपीआई बेस्ड आता है। व्हाट्सएप इज गोइंग टू रोल आउट दिस पेमेंट, अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को रोल आउट कर दिया है, और जिनका नहीं हुआ उनका बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो अगर आप जियो का फोन यूज करते हो ना और जियो वाले का व्हाट्सएप से इंटरेक्ट करते हो, अब मतलब वो दोनों कंपनी का तो आपस में अभी समझियो वाला नाटा हो गया है, लेकिन यू कैन मेक योर फोन का पेमेंट और रिचार्ज योर फोन फ्रॉम व्हाट्सएप इफ यू आर यूजिंग जियो। सिमिलरली हम भी अपने इनवॉइस भेज सकते हैं ना कस्टमर को, तो भाई उधर ही क्लिक करके पेमेंट कर दे, तो वो व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप पेमेंट आएगा, कुछ खर्चा नहीं लगने वाला है। रिमेंबर इट इज बीइंग डन थ्रू यूपीआई, सो देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन द बोथ द साइड्स। तो ये पेमेंट कलेक्शन वाला बहुत बड़ा काम हो सकता है। फिर ये मैक्सिमम लोगों में से किसी ने ना ये नर्चरिंग लीड का या ड्रिप मार्केटिंग का उल्लेख नहीं किया है। मुझे लगता है दिस कैन बी द बेस्ट थिंग टू डू, ठीक है। इसका एग्जांपल पकड़ के देखते हैं कि समझो आप में से बहुत से लोग हैं जिनको ना ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, आपका वेबसाइट और दूसरे और जगह से बहुत सारे लीड्स आते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वंस दैट लीड इज क्वालिफाइड, ये आपने एटलीस्ट फोन करके ये चेक कर लिया कि हाँ भाई ये आदमी है, उसको ये चाहिए, बराबर है, एक जरूरी है, इसके बगैर करोगे ना तो रिस्क है थोड़ा। क्या रिस्क है थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जैसे ये कंफर्म हो जाता है, वी स्टार्ट ए कैंपेन टू दिस पर्सन। मतलब किसी को समझो ऐसा है, जैसे आशीष सर है जो पाइप का बिजनेस करते हैं, तो उनके कस्टमर का किसी का समझो पाइप का रिक्वायरमेंट आया है स्पेसिफिक कुछ, तो उसके बारे में कैंपेन हो, धीरे धीरे करके मैसेजेस जाए कि भाई दिस आर आवर प्रोडक्ट्स, दिस इज अबाउट आवर कंपनी, दिस आर आवर क्लाइंट्स, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे वो जा सकता है। सो देन द सिस्टम इज टेकिंग केयर ऑफ नर्चरिंग योर लीड्स। दिस कैन बी फैंटास्टिक आइडिया। ऑनबोर्डिंग है, आप में से मेजॉरिटी लोगों के बिजनेस में जब कस्टमर नया बनता है तो यू रिक्वायर टू डू ऑनबोर्डिंग, ठीक है। टेक फॉर एग्जांपल तोशनीवाल जी शेयर ब्रोकिंग का काम करते हैं, राइट। तो तोशनीवाल जी का जब भी कस्टमर आता है तो मतलब समझो कि मैं उनका नया कस्टमर बन गया। नाउ दे हैव टू एक्चुअली टीच मी फ्यू थिंग्स। उनको मुझे ये बताना है कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा, ठीक है। तो वो जो ऑनबोर्डिंग का है ना, जहां पे वो लोग अपनी भाषा मुझे सिखा रहे हैं, ये इसमें किया जा सकता है। दूसरा, समझो आप आईटी का बिजनेस करते हो, आपने कस्टमर का एएमसी चालू किया, तो एएमसी जिस दिन शुरू हो गया आपका, उस दिन भी आप उसको एक ऑटोमेटेड मैसेजेस वाला सीक्वेंस भेज सकते हो कि भाई आपका एएमसी शुरू हो गया है, ये आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मतलब हमारे साइड के, ये एस्केलेशन के पॉइंट्स है। ऐसा बारी बारी करके मैसेज भेजा जा सकता है। इधर एक ट्रिक बोलता हूं आपको, आप ये भी कर सकते हैं कि हर 1.5-2 महीने के बाद एक मैसेज ऐसा जाए कि आई जस्ट वांटेड टू टॉक विद यू, वी हैव सम अपडेट्स एंड ऑल्सो वांटेड टू डिस्कस कि हमारा टीम का काम कैसे चल रहा है। तभी क्या होगा ना कि वो बोलेगा हाँ ठीक है फोन करो, तो आप फोन करके बात करोगे। इंडिया में कैसा है कि अगर आप नया क्या चल रहा है ये पूछो ना, तो अपने पास बहुत कुछ होता है बात करने के लिए। सो वी मेक इट ए प्रैक्टिस के कस्टमर्स के साथ बात की जाए ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो हमको मालूम हो कि अगर जाने वाला है ना तो क्यों जाने वाला है, कब जाने वाला है, एंड वी कैन प्रिवेंट दैट। इसीलिए ऐसा है कि हमारा कस्टमर जो रिटेंशन रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा है। मैं बहुत सारे दूसरे सीआरएम वालों को जानता हूं, उनका कस्टमर रिटेंशन रेशियो बहुत खराब है। फीडबैक का काम किया जा सकता है,
लेकिन फीडबैक को लेके भी मेरे कुछ रिजर्वेशन, आई वांट टू शेयर दैट। एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, एंड यू कैन टेल वेदर इट इज करेक्ट और नो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ऑब्जर्वेशन ये है कि समझो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, फैंटास्टिक खाना था, हम में से कितने लोगों ने शेफ को बुलाया और बोला कि आई वांट टू किस योर हैंड्स, बहुत जोरदार खाना बनाया? कोई नहीं बोलता है। लेकिन वही शेफ जो अपने को 5 साल से बेहतरीन खाना खिला रहा है, एक दिन अगर सांभर में नमक ज्यादा डाल दे तो हम बोलते हैं शेफ को भी बुलाओ और मैनेजर को भी बुलाओ, राइट? सो एज ए इंडियन जनरली वी डोंट वांट टू गिव फीडबैक, अदरवाइज वी वांट टू गिव ओनली व्हेन इट इज नेगेटिव। ये मेरा अभिप्राय है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो अच्छा हो रहा है ना ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा इस तरह के फीडबैक लेने से, ठीक है? तो यस, ऑटोमेशन हो जाएगा, कस्टमर्स को भी लगेगा कि अरे वाह टेक्नोलॉजी अच्छी चल रही है, तो दे विल बी हैप्पी। और यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि ये फीडबैक जिनका हम लेते हैं ना, उसमें से रैंडम लोगों को फोन करते रहना चाहिए, तो अच्छा होता है। और जब भी थोड़ा सा भी नेगेटिव फीडबैक आए तो इट हैज टू बी ट्रीटेड ऑन एन एस्केलेशन मोड, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए तो बराबर चलेगा। फिर ये जो आउटस्टैंडिंग कलेक्शन का है, सिंस योर टैली एंड सीआरएम आर नाउ इंटीग्रेटेड, और आपका टैली में से लेजर भी सीआरएम में है, तो सीआरएम से हम क्लाइंट्स को लेजर भी भेज सकते हैं, पीडीएफ फाइल है ही वो, तो दैट आल्सो कैन बी सेंट। और बहुत सारे आइडियाज आएंगे, वी कैन जस्ट कीप ऑन राइटिंग। नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस? सी हियर इज व्हाट आई बिलीव, कि जब भी है ना सिस्टम में से ऑटोमेटेड अपडेट्स कस्टमर को जाए ना, ये कुछ ऐसा हो गया कि वी आर अलाउइंग द कस्टमर टू पीप इनटू अवर सिस्टम। मतलब उसको दिखने लगता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है? अच्छा कर रहा है तो भी दिखेगा, बुरा कर रहा है तो बहुत बुरी तरह से दिखेगा। एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि टिकट क्रिएट हुआ, उसका ऑटोमेटेड मैसेज चला गया। अब हमारे आदमी ने टिकट क्लोज कर दिया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन टिकट क्लोज नहीं किया, तो मैसेज जाएगा ही नहीं। तो कस्टमर को पता चलेगा कि नहीं ये लोग ऐसा ऑटोमेशन कर रहे हैं लेकिन यूज नहीं हो रहा है। दूसरा कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लम आया था, कस्टमर को नोटिफिकेशन गया कि योर टिकट हैज बीन क्रिएटेड, वी आर रेस्पॉन्डिंग, और आपके आदमी ने उसको कुछ सॉल्यूशन करके दिया जो आपके व्यक्ति को लगा कि हो गया है, लेकिन कस्टमर वाज नॉट कन्विंस्ड। वो बोला था टेस्ट करूंगा, टेस्ट करके बताऊंगा। तो आपने तो क्लोज कर दिया, इधर कस्टमर को मैसेज चला गया कि वी हैव क्लोज्ड योर टिकट, वी आर हैप्पी टू हैव यू एज अ कस्टमर, और हमको बड़ा आनंद है, गर्व है आपके साथ काम करने में, वगैरह वगैरह। तो कस्टमर कैन गेट एनॉयड। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, मुझे लगता है कि ऑटोमेशन में जाने से पहले वी विल हैव टू कंसीडर हैविंग वेरी वेरी गुड डिसिप्लिन इन आवर टीम्स। अगर टीम में डिसिप्लिन लैक होगा तो ऑटोमेशन कैन बी डेंजरस, भयंकर डेंजरस। मतलब समझो ऐसा होता है कि कस्टमर का कोई इंक्वायरी आया, वो क्रिएट हो गया, हमने यहाँ से उसको ऑटोमेटेड मैसेज भेज दिया कि योर इंक्वायरी हैज बीन क्रिएटेड इनटू आवर सीआरएम सिस्टम एंड वी आर थैंक यू फॉर योर बिजनेस एंड आवर सेल्स टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून। उसके बाद अपना व्यक्ति वो सीआरएम खोलता ही नहीं है, वो फॉलोअप करता ही नहीं है, वो फोन कस्टमर को करता ही नहीं है, वो कोटेशन भेजता ही नहीं है। जस्ट इमेजिन क्या होगा, ठीक है? वो कस्टमर ना अपना होने से पहले ही बिछड़ गया। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आई हैव वन मोर गुड, लेकिन नया न्यूज नहीं है, पुराना न्यूज है। बिफोर आई शेयर दैट एंड वी डू दैट, आई वुड लाइक टू ओपन अप दिस सेशन फॉर स्लाइट डिस्कशन, कि वट एवर क्वेश्चंस और क्वेरीज यू हैव वी कैन डिस्कस दैट। either you can enable your mic and speak, or you can write it in the chat. We are okay with anything. Also, it's okay if you can, yes, Mr. Mayur, you can ask the question. Hi, good evening everyone. मेरा एक्चुअली एक दो चीज़ों में पूछना था। जैसे अभी हम लोग अगर ऑपरेटर से ले रहे व्हाट्सएप की सर्विसेज, देन दे विल चार्ज ऑनबोर्डिंग चार्जेस, ठीक है? तो वो क्या कंसेप्ट है? और सेकंड ये है कि हम लोग सिर्फ ऑप्ट इन डेटाबेस पे ही मैसेजेस भेज सकते हैं क्या, या अगर मेरे पास कुछ रैंडम डेटाबेस है उस पर भी भेज सकते हैं? तो उसका क्या कंसेप्ट है? किस
Okay, so you have two questions. First is कि जो onboarding वाला है ना उसका क्या हिसाब है? जब भी आप provider तो they charge monthly rental also. जैसे आपने बताया कि so there is 5,000 से first लेकर onboarding charges and then monthly renter. I explained in the beginning why they are charging monthly renter. And second is why they are charging onboarding is because they have to do some activity. They have to create your business account in Facebook and then link everything. And that is like half an hour or 1 hour job, right? But if you do it on your own, maybe you will have to study everything but you can do it. And with Cloud API, now you can go directly to them. Right? You can directly go to Facebook, create your business account, then create Cloud API and then start using it. Okay. Okay, so we are trying to work in a way where we don't have to impose monthly charges on you for this. And you will not have to go through any BSP. You can directly pay to Facebook, whatever are the charges. We are not involved in that. आप उनको दे दो, हमारा जो इंटीग्रेशन का होगा हम आपको बता देंगे. And whether you can send messages to opt-in and non-opt-in contact, the logic is no one should ban you. मतलब लोग आपको रिपोर्ट नहीं करने चाहिए. See, I will tell you my concept of marketing, how I see marketing as. मुझे ऐसा लगता है marketing जब भी हम करते हैं ना तो ये किसी को समझाने का, रिझाने का ऐसा प्रयास. We are trying to woo somebody, right? वो रोमांस के जैसा है. जो तुम कहो वो हम कहेंगे, जो तुमको पसंद हो पसंद कहेंगे, ऐसा सब कुछ. ठीक है? Now in that scenario, if I just want to do whatever I like, I don't consider what you like. तो रोमांस नहीं होगा, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा. ठीक है? तो सामने वाला फरियाद करेगा. And if you want to understand the logic behind this, just ask yourself one question, whether we are customers of WhatsApp or not. And Vinay ji asked whether you have to get approval for each and every message or not. Yes, you have to get approval. But that approval generally happens within 30 to 40 seconds. Everything is automated. So, जो पुराने जमाने में ऐसा सुनते थे ना कि WhatsApp बड़ा ही strict है, ये नहीं करने देता है, वो नहीं करने देता है. It allows you to do everything, right? Only thing what Mayur said, कि you should not send to people who don't know you, who are not expecting your message and who might get annoyed with the content that you are sharing. ठीक है? तो वो नहीं करना चाहिए. You should not do that. And promotional transaction messages, it is approval is still there, but that approval, as I said, generally happens in 30-40 seconds. Not a big deal. Yes, Toshniwal ji, you wanted to say something. Yes, Nimish bhai. So I am very, very excited, very excited hearing all this and all that, right? And the opportunities are immense. Yes. Now, what comes to my mind is the kind of quality messages which you can send, like which the infographic or the good looking messages. So Yes. very early, maybe 6, 7, 8 years before, I used to receive a ticket from Book My Show. Right, so it gives you a good idea now. Ticket in your palm, you go show the ticket, and it gives a good display. So similarly, to our customer, to serve them on day-to-day basis on many of the things, this can be done, and which are eye-catchy, looks good. Okay. Now, just one general question: what do you feel going forward? SMS will be used if person still is on WhatsApp. Is there any future left now for SMS to be sent to a person who is available on WhatsApp? I think SMS is only used for authentication and OTP purpose now. Okay. For identification कि ये आपका ही phone है. Right? अच्छा, there is second scenario. We all can check our phones, how many 100 SMS we have and how many 100 WhatsApp messages we have. All of us might have lots of 100 messages, SMS, लेकिन WhatsApp 100 नहीं होता है. WhatsApp हम देख लेते हैं. Correct. That's So true. that means people also understand कि WhatsApp पे अगर किसी का गलत मैसेज आ गया ना तो we might report it or block it और ऐसा कुछ. SMS में जनरली वो फंक्शनलिटी नहीं होता तो छोड़ देते हैं उसको. Now, alert notification works very well on WhatsApp. Send a mail to somebody and tell him that's भैया mail भेजा urgent है जरा देख लेना.
So instantly it goes a reminder to him कि भाई mailbox में तो 50 मेल पड़े लेकिन ये एक पहले देख लेना. Yes. Right. So opportunities are immense. I am very, very excited. Right, rolling out, and since we are already using the advanced IVR of the NJ and our back office together, where customer calls and he can receive, the ledger balance on over the call or over the email. Now receiving over the WhatsApp is delight. Yes. Right. So I'm very, very excited and see that it's going to be very good. Yes. And now when you use, I am very, very excited, very, very positive, and see immense possibilities which this can bring in distributed agents, messages. Right now through the devices, it becomes too complicated. Yes. Carry the device home, you can't open anywhere. Right. So I'm very, very excited. Yes, sir. So I have one more good news to share with all of you, that now the Sangam CRM app is available on Google Play Store. You can download it from there directly. You might have, all of you have received notifications, but we see that many of you are not yet updated. तो अपडेट कर लो भाई, जल्दी कर लो, ठीक है? नहीं तो फिर then somebody might complain कि मेरे में वो नहीं चलता है. But that works in the older system, that works in the newer system, and you might be using the older version, but then it will not work. Okay. Yes, Mr. Ashish Seth and Aman Jha, both of them have raised hand if they have to say. Okay, don't leave while this question and answer is happening, because I want to share something which is already in our CRM, which most of you are not using. That is very exciting thing regarding WhatsApp. Yes, Ashish bhai, please go ahead. Sir, one of my primary concern is कि अभी email पे तो हम tracking कर लेते हैं, इसको जवाब दिया, लड़कों का कहाँ reply pending है. WhatsApp में वो कैसे track होगा? Because once we start using WhatsApp API and reaching out to customers, it is convenient for the customer also कि वापस WhatsApp भेज देता है. And I am off the grid of email. कम्युनिकेशन ईमेल पे घटती जाएगी और सीआरएम पे आ जाएगी. उस पे अनआंसर्ड क्वेरीज कैसे मैनेज होंगे, हमारे से कैसे ट्रैक होगी? Sir, there will never be a fantastic alternative for discipline and supervision wherever required. और वो सुपरविजन कैसे होगा? गुड क्वेश्चन. मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं. मैंने जो दिखाया ना उसमें ही आंसर था. आप जो पूछ रहे हो उसका, लेट मी शेयर दैट वंस अगेन विद यू. अभी हम लोग ने ये देखा, इसमें ना देखो कन्वर्जन क्लोज करने का ऑप्शन है. ये जो माउस से दिख रहा है, फॉलो अप मार्क करने का ऑप्शन है. ओके, किसका फॉलो अप करना है. तो दिस विल वर्क. ये जो आया है ये स्पैम है, ये मार्क करने का ऑप्शन है. एज गुड एज एन ईमेल हो गया ये. और समझो मैंने ये कन्वर्सेशन अभी डन कर दिया और इसी व्यक्ति ने वापस कुछ मैसेज डाला, तो ये डन में से वापस डन निकल जाएगा. And this will be a one central message box for the entire company, entire team. Yes. क्योंकि आप assign to कर रहे हैं. हाँ, तो ये तो अभी भी अवेलेबल है ना सर. You can just open your Facebook account and then try creating. There are lots of fantastic videos available on YouTube. Just watch. See, अभी ये मयूर ने पूछा था ना कि there are companies who ask for onboarding charges. Why they are asking for onboarding charges? आपके बिहाफ के ऊपर वो लोग ये क्रिएट करके देने वाले हैं जो फ्री है. क्रिएट तो कोई बड़ा बात नहीं है, बराबर है. और दूसरा ये है कि whatever tool we start to use, then we will never be able to complain. यार मैं तो भूल जाऊंगा तो कैसे याद दिलाएगा. कितने तरीके हो सकते हैं याद दिलाने के. ठीक है कि भाई आप इनबॉक्स देखना भूल गए तो सिस्टम विल सेंड यू एन व्हाट्सएप मैसेज. व्हाट इफ यू फॉरगेट टू चेक व्हाट्सएप आल्सो, देन सिस्टम विल सेंड यू अनदर मैसेज, फिर अनदर. देन इट कैन आल्सो सेंड मैसेज दैट यू फॉरगॉट टू सी द इनबॉक्स टू मे बी माय वाइफ. तो मेरी वाइफ मुझे याद दिलाएगी कि भाई ये कैसा होगा, तुमने चेक ही नहीं किया अभी तक.
तो ऐसा नहीं हो सकता है. वी विल हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन कि ये तो रोज चेक करना ही है, ये क्या बोलते हैं, ऑप्शनल नहीं है. यस मिस्टर अमन, Optional यू नहीं हैव है. टू आस्क सम क्वेश्चंस. हाँ बोलो ना आशीष भाई, यस स्पीक. वही मेरा क्वेश्चन वही था सर, बिकॉज बहुत कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे आ जाएगी, पर्सनल लेवल पे आ जाएगी, कॉर्पोरेट में उसका कंट्रोल कैसे होगा? You दैट have इज to take care of that, and because it is a new platform. See why I told creating chatbot is difficult, because we are not tuned or habituated. हमको आदत नहीं है उस तरह के कम्युनिकेशन का. तो when you sit and try to design a chatbot, it is most confusing. ठीक है. उसी तरह से अब तक समझो हमने लोगों का फोन किया था, या देयर आर मेनी कंपनीज हु हैव ओनली वन ईमेल आईडी जो बॉस का होता है, उसी का यूजर नेम पासवर्ड पूरे टीम को दे देते हैं सो दैट दे कैन ट्रैक, राइट. तो जैसे जैसे टूल्स नए आएंगे, हमको नए टूल्स को ट्रैक करने का तरीका सीखना तो पड़ेगा. ठीक है. Yes, Aman bhai, you had a question. That is the last question we are taking, and then I want to show you the demo. And I already told you कि संपर्क सेतु का Google Play Store पे ऐप आ गया है. You should download it and upgrade and ask your entire team to do that. हम लोग ने ना एक बात सोचा है. If you don't upgrade, every time we give you a call, we'll charge 100 rupees. हम याद करा रहे ना, तो भूल जाने का कीमत तो होगा ही. अभी तो आशीष सर ने बोला. यस मिस्टर अमन प्लीज. संपर्क सेतु बोल रहे हैं या संगम ऐप बोल रहे हैं सर? संगम. या लिमिट सर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल. यस. एंड आपका जो ऐप आ चुका है उसको हमने अपडेट भी कर दिया है, एंड यूजर्स आर प्रोसेसिंग ऑन दैट. सभी ने धीरे धीरे करके अपग्रेड करना शुरू कर दिया है. मेरा क्वेश्चन दो चीजों को लेकर के है व्हाट्सएप पे. एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि जब हम कई बार ब्रॉडकास्ट बनाते हैं तो कई बार सुनने में आता है कि अगर सामने वाले के पास मेरा नंबर सेव नहीं है तो उसको ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं जाता है. Hold. You are talking about WhatsApp app. क्या? Here we are talking about the API. Okay. API में उसको बोला जाता है ब्रॉडकास्ट, लेकिन जो WhatsApp ऐप का ब्रॉडकास्ट का डेफिनेशन है ना, उसका अलग है. Okay. ठीक है. और वहां पे वो क्यों नहीं भेजेगा यार, उसका हर मैसेज का पैसा मिलने वाला है. जस्ट इमेजिन. सेकंड इसका एक बहुत अच्छा धंधा है. या सेकंड इसका एक बहुत अच्छा यूटिलिटी और होता है, दैट इज कैटलॉग. व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग जो फीचर होता है वही मार्केटिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है. तो ये भी वहां पे कुछ हेल्प करेगा क्या? फिलहाल नहीं है, वो आएगा. तो वहां पे कैसे हेल्प करेगा? You can create catalog there also. कौन सा बड़ा बात. Okay. See, I just shared. I will share a video with you, जो which I showed you currently, recently. कि वो जो पूरा प्रेजेंटेशन है ना 1 घंटा 20 मिनट का, वो देखिए, उन्होंने कैटलॉग का भी बात किया है. There is a lot of new things happening on those fronts. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Okay. So now let's move back to what I was sharing with you कि क्या है. And we already have a WhatsApp integration in CRM, but that is not through the WABA or WhatsApp Business API. It works with your Android mobile. ठीक है. And in that you can create chatbot, you can create campaigns, you can create automated sending. बराबर है, मतलब ऑटोमेटेड सेंडिंग का भी ऑप्शन है, और इमेजेस और वीडियो भी आप उसमें भेज सकते हैं. तो मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूं कि इसमें क्या कर सकते हैं. सी सबसे पहला होगा ऑडियंस सिलेक्ट करना है. ठीक है. सो दिस इज लिस्ट ऑफ पीपल हु आर अटेंडिंग टुडेस इवेंट. ठीक है. तो आई कैन क्रिएट द लिस्ट आउट ऑफ इवेंट मेंबर्स और लीड्स और कॉन्टैक्ट्स. 3 में से लिस्ट होगा, क्योंकि व्यक्तियों का नाम तो उधर ही होता है. So there are 208 entries. So I select all of them, select all, then I create a tag. Sangam WA features info. इस नाम का मैंने टैग बना लिया.
और सेव कर दिया. सो आई हैव आइडेंटिफाइड कि किन को भेजना है. Next thing that I have to do is I have to create a template, right? क्योंकि कैंपेन बनाना ना तो टेम्पलेट चाहिए होगा इसके लिए. तो मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा है. I will share that only with you. तो ये वो टेम्पलेट है. I'll put that here, right? I have to select module wise. और यहाँ पे सिलेक्ट करना है चेकलिस्ट. ये यूआई थोड़ा सा चेंज हो जाएगा थोड़े दिन में. एंड इधर मैं वही नाम लिखता हूँ जो मैंने ये इसका बनाया था कि संगम व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन. आशीष सर, मैंने आपका वो रेस किया हुआ हैंड देखा है. आई विल कम बैक टू यू इन सम टाइम. तो मैंने ये टेम्पलेट कर लिया सेव. ठीक है, ये टेम्पलेट सेव हो गया. नाउ आई हैव टू क्रिएट ए कैंपेन. तो आई विल गो हियर, कैंपेन्स क्रिएट. ये सब आप मेनू में भी जा सकते हैं. मुझे थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताना है इसलिए मैं आपको फास्ट बता रहा हूं. ये कैंपेन का नाम रखा. ठीक है, हमने जो ये टेम्पलेट बनाया था उसका नाम कैसे रखा था? संगम व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन. सो इफ आई कम हियर आई कैन सिलेक्ट दैट. Just give me a minute while I search for this. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे गलती किया है. गलती नहीं किया है, ये सुधर गया है, मेरे में अपडेट नहीं आया है. आप अपना चेक करेंगे तब तक ये सुधर जाएगा. ये रहा. ठीक है, कब जाना चाहिए? तुरंत, अभी. और किन को जाना है? हमने अभी अभी बनाया ना वो संगम व्हाट्सएप फीचर्स इन्फो. इन लोगों को जाना चाहिए. नाउ एवरीथिंग इज सेट. आई जस्ट से सेव एंड इट्स. अच्छा, ये सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा टेम्पलेट जाना है. तो व्हाट्सएप जाना है. I say save. Now it is ready to be live. Now I will request my team to allow me to share my mobile screen. ठीक है. So Raj, can you allow me sharing options on Limesh Parekh mobile? ऐसे करके लॉगिन किया है. Done, sir. ठीक है. So now what is happening is, if you just look here, if I refresh this page, campaign वाला page, you will see कि 197 मैसेजेस बने हैं व्हाट्सएप के. अब वो बने हैं तो कहाँ दिख रहा है? तो मैं आपको बताऊं, सीधा आपके मोबाइल पे दिखेंगे. So you should be able to see my screen in a while. Once you are able to see, please confirm. ठीक है, दिख रहा है. अब मैंने CRM चालू कर दिया. और जनरली आप डैशबोर्ड पे होते हैं, वहां से आपको व्हाट्सएप में जाना है. एंड एज वी आर टॉकिंग, दिस इज ऑलरेडी देयर इन योर CRM. आपने यूज नहीं किया है, इतना ही बात है. ठीक है, ये 197 मैसेजेस आ गए. जो वहां भी बने थे वही आए हैं. नाउ लेट मी से सेंड. आप देख रहे होंगे कि ऊपर है ना एक प्ले का बटन है. राइट हैंड साइड में 3 बटन के बाजू में एक प्ले का बटन है. आई विल क्लिक ऑन दैट. और यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से मैसेजेस जाने हैं. मैं बोल रहा हूँ कि 250 नहीं, मुझे जस्ट 50 मैसेज भेजने हैं. 10 मैसेज के बाद 1 मिनट के लिए रुकना. बैच में भेजेंगे. ठीक है, एंड से स्टार्ट.
तो अभी इसने मैसेज भेजना अपने आप चालू कर दिया है, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, वो जा रहा है। तो ये तो अपने आप चला जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को मिल भी जाएगा। एंड आप लोगों को मिल जाए तो यू कैन रिस्पॉन्ड कि भाई मिल गया है करके। निमेश भाई ये एक खुलेगा तो ये तो मैक्रो बेस्ड किया हुआ है क्या? सर ये टेक्नोलॉजी जानने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नहीं, मैक्रो नहीं है, कुछ और है, राइट। लेकिन जिसको हम एक्सेल में मैक्रो बोलते थे ना, उसका एक अलग प्रकार का बड़ा एडवांस नए जमाने का वर्जन ही है, बट इट वर्क्स परफेक्टली वेल। आप लोगों को जो आज इनविटेशन आया था वो भी वैसे ही आया था, कल आया था वो भी वैसे ही आया था, और पिछले 3 हफ्ते में जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे थे कि व्हाट डू यू वांट टू सी इन CRM व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, वो भी ऐसे ही आया था, ठीक है। तो ये अभी जा रहा है। एंड वन मोर थिंग, इफ एट ऑल यू वांट टू ट्राई कि इसमें चैटबॉट कैसे चलता है, तो मैं आपको लिंक अभी चैट में शेयर करता हूं। उस लिंक के ऊपर यू कैन क्लिक एंड ट्राई द चैटबॉट। आई विल पॉज दिस, अभी अपने को आगे नहीं भेजना है। से आई जस्ट शेयर, सॉरी गलत लिंक आ गया। ये करेक्ट लिंक है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप चैटबॉट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या 000 करना है। और मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो चैटबॉट आप कुछ लोग ट्राई करिए, तो देन आई कैन एक्सप्लेन हाउ इट इज मेड। एक्चुअली आई वांट टू शो यू हाउ चैटबॉट इज डिजाइन्ड। You can click on this and type 000 in WhatsApp, या मेरा नंबर जिनके पास सेव्ड है, आज मैसेज भी आया था अभी, there also you can type 000, ठीक है। Now you got that menu, from that menu you can type more things, ठीक है। सो नाउ अभी मेरा स्क्रीन शेयर है, तो आप सब लोगों को आइडिया आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करे। हेलो सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है ना, उस पे सब लोग 000 डाल रहे हैं। अरे भाई उस पे नहीं, इस पे, उधर नहीं, इधर मैंने जो लिंक दिया है ना उसके ऊपर। बाय द वे माय नंबर इज 9558821650। आपका अगर सेव्ड है तो आप ओपन करके उसमें डाल सकते हैं। 989800 है ना, ये मेरा नंबर नहीं है। एक जमाने में था, मतलब दैट यूज्ड टू बी द फर्स्ट नंबर ऑफ, पहला मोबाइल था हमारी लाइफ का। ओके, सो यू हैव सीन दिस। तोशनीवाल जी सिंगल 0 नहीं है, 3 डिजिट है मिनिमम, ठीक है। सो हाँ, अभी बहुत से लोगों ने ट्राई कर लिया। व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड शो यू हाउ इट वाज डिजाइन्ड। यहाँ CRM में जाना है, और एक ये रूल इंजिन्स करके ऑप्शन है, ये सब भी अभी भी आपके CRM में है, राइट। इट इज ऑलरेडी इन योर CRM। और यहाँ पे ना एक इंजन हम लोग रूल क्रिएट करते हैं, और उधर से आपको ख्याल आ जाएगा कि ये चल कैसे रहा है। फिर मैं आपको ये रूल है ना एक्टिवेट करके बता दूंगा कि मैचेस में, और यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं कि A22 लिखा आपने, तो रिप्लाई में क्या आना चाहिए। ठीक है, इतना आ गया, एंड आई से सेव। तो ये रूल बन गया, राइट। लेकिन आप अभी लिखेंगे ना वो A22, तो आपको रेस्पॉन्स नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रूल मोबाइल में अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। वो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू जस्ट गो टू रूल इंजिन्स वंस, ओपन,
और ओपन होगा तो रिफ्रेश करना है तो आ जाएगा। सर ये हिस्ट्री भी सेव होती है क्या सीआरएम में कंपनी के अगेंस्ट में? नहीं, तो अब वो नंबर तो एक ही पे रिप्लाई आएगा सबका, अगर तो फिर एक एग्जीक्यूटिव को लगाना पड़ेगा क्या उस पे? नहीं, मैंने उसका तरीका ढूंढा है। तरीका ये ढूंढा है कि बिकॉज यू प्रेस्ड A22, हाँ, में जो आपका नाम होगा ना उसके जाके वो A22 लग जाएगा। आई डिडंट गेट यू सर, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन। A22 वाला चैटबॉट बनाया हमने, रूल बनाया। So now you pressed A22 and let's say Ashish bhai pressed A22, Dhaval pressed A22. तो आप जो मेरे CRM में कांटेक्ट होगा ना उसके आगे वो A22 का टैग लग जाएगा। जो यूजर होगा Contact होगा उसका। सीआरएम यूजर, CRM यूजर तो मैं हूं ना सर। करेक्ट। नहीं, अपने पास 10 यूजर हैं सर, अपने तो 10 यूजर हैं, 10 यूजर के पास अलग अलग कस्टमर्स हैं। हाँ, अब अपन ने कोई कैंपेन चलाया, उस कैंपेन में अपन ने तो 10 यूजर को भेजा, अब उनमें से किसी का लीड जनरेट हुआ, So you can create this chatbot on all those 10 mobile numbers, no problem. तो डिफरेंट मोबाइल नंबर से जाएगा मैसेज। कैंपेन को आप जैसे डिजाइन करोगे वैसे जाएगा ना, कौन से नंबर से कैंपेन भेजना है ये नक्की करना पड़ता है। अच्छा, शुरू में आपको ऑप्शन आएगा कि आपको किस कैंपेन से भेजना है, तो वी कैन चेंज दैट एवरी टाइम, बट एक बार में एक ही चलेगा, राइट? पता भी चल सकता है उसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल yesterday you received invitation का कैंपेन from our CRM team. Yes. At that time I was sending campaign to some other people, partners को भेज रहे थे, और फिर तभी ही मैंने तीसरा कैंपेन बनाया था for sending you the message which I sent you today morning. ठीक है, तो वो सारा फीचर्स उसमें है सर। देखो ये रूल आ गया। अभी आप A22 टाइप करोगे ना तो यू विल गेट रेस्पॉन्स। निमेश भाई, मैंने 000 की जगह 000 भेजा, तो हाउ डिड यू केम टू नो दैट आई सेंड 000? तो यहाँ आपका नाम दिखा ना सर। अच्छा, ओके ओके। You logged in as a CRM user and CRM user is showing you that I sent a message. ये तो मेरा मोबाइल है ना सर, पर्सनल मोबाइल है। अच्छा, ठीक है, तो मोबाइल में तो आपका नंबर तो सेव्ड है ना, जैसे अभी नितिन भाई ने 000 भेजा, सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रणय बगड़िया सेंड A22, देवेन मिस्त्री सेंड A22, अजीत महाजन सेंड A22, तो ये सब यहाँ बन गया। नितिन भाई ने A22 लिखा, तो जिन जिन लोगों ने A22 लिखा ना उनके नाम के आगे A22 लग जाएगा। इसका मैं अलग से आपको एक यूज केस सिनेरियो बोलता हूं कि क्या यूज किया जा सकता है। अभी आप चैटबॉट शांति से देखोगे ना, तो इफ यू टाइप 200 यू गेट डिटेल्स अबाउट CRM, इफ यू टाइप 400 यू गेट डिटेल्स अबाउट टैली ऑन क्लाउड, 400 के बाद 401, 402, 403 ऐसे आते हैं। तो उसमें कुछ मैसेजेस है ना वो इंफॉर्मेशन वाले इंटेंट के हैं, कुछ मैसेजेस है ना ये बाइंग के इंटेंट के हैं। एग्जांपल बोलता हूं, इफ somebody wants to see how CRM works, that's an information intent. If somebody wants to know what is the price of CRM, that's an buying intent. If somebody wants to किसी ने ये देखा कि कस्टमर का टेस्टिमोनियल, तो that's an buying intent. किसी ने अगर ये बोला कि मुझे डेमो देखना है, तो that's a buying intent. ठीक है, तो इससे मालूम पड़ता है कि क्या सामने वाले ने टाइप किया ना उसका मतलब क्या है। तो जब भी आप ये ऑप्शंस बनाओगे ना, तो आपने ये भी सोचना चाहिए कि किसी ने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया उससे आपको क्या समझ में आता है। मैं एक्सप्लेन कर पाया कि ज्यादा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को? सर ये कोई मिल जाएगा कि जो ये बना दे कंपनी में बैठ के? तो दीज आर जनरली वेरी कॉस्टली पीपल। और वो है ना, मतलब मुंबई में एक दोस्त है मेरे जो वो काम करते हैं,
तो उनका ऐसा है कि आपको 12 महीने में वो सपोर्ट देंगे, बट ही विल चार्ज 1.25 लाख रुपया। तो हम लोग ही बैठ के कर डालेंगे तो सस्ते में पड़ेगा। मतलब इफ ओनर हिमसेल्फ सिट्स, क्योंकि एक तो ये होगा कि वैसे भी जो बनाना हो आपको ही बोलना पड़ना है सब। ओके अगर हैंड होल्डिंग एनजे कर देता है तो उससे भी हो जाएगा मेरे को लगता है काम से। हाँ, तो आप है ना खाली मेरा चैटबॉट को एक्सप्लोर करो ना आधा घंटा बैठ के, उससे भी काफी निकल जाएगा जी। हाँ, और ये सोचने का कोशिश करो कि ये वाला ऑप्शन बनाया क्यों है हमने। हाँ, और उससे आप ये कह रहे हो कि इंडेंट जो होता है उससे वो टैग हो जाएगा सामने, यूजर वाला यूजर टैग हो जाएगा। And one thing I will share with all of you, that technology part is extremely simple. Complicated is the messaging part. और जितने लोगों ने चैटबॉट बनाया ना, इधर बहुत से जन देखो धवल भाई धीरे धीरे अंदर से हंस रहे क्योंकि उन्होंने बनाया है। ठीक है, मैसेज क्या लिखना है ना, इसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सर वो तो बार बार चेंज भी तो होता रहेगा, बार बार अपडेट रिवीजन सब होता रहेगा, वो तो करेक्शन चेंज करने को कितना टाइम लगेगा। करेक्ट। और ये फ्री है, संगम के साथ है, बराबर सर है? इसमें एक क्वेरी ये थी कि जो कॉल अपने को आया है उसको मुझे मतलब वो प्रोस्पेक्टस है बट इमीडिएट प्रोस्पेक्टेड नहीं है, तो वो संपर्क सेतु में उसको टैग करके मैसेजेस सेंड कर पा रहे थे। इसमें सेव तो करना ही पड़ेगा ना आपको सर। अच्छा, क्योंकि उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं होती सर। एक मतलब वो लॉजिक समझते हैं। मैं साइकिल चलाता था ना, तभी मेरा आदत कैसा था कि मैं ना सब पैर नीचे रख के ब्रेक मारता था, एंड आई वाज कंफर्टेबल इन दैट सिनेरियो फॉर लाइक 5-7 years ऑफ माय लाइफ। साइकिल सीखा और बाद में बाइक लिया ना, तब तक में बाइक लिया ना, तब प्रॉब्लम क्या हुआ, वो आदमी क्या बोलता है, वो ब्रेक है ना पैर से ही दबाने का है, यू कांट पुट योर लेग्स डाउन टू स्टॉप द बाइक, वरना बोला टांग टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी अगर हम लोग हथियार चेंज कर देते हैं ना, साधन चेंज कर देते हैं, then we will have to change our way of working also. तो किसी का फोन आया, उसको सीआरएम में एज ए लीड सेव करना पड़ेगा, उसको वो टैग मारना पड़ेगा, तो कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं मुझे लगता है, बाकी मुश्किल नहीं है। हाँ बोलिए ना। तो डुप्लीकेसी बहुत बार हो जाता है, मोबाइल नंबर से डुप्लीकेट तो ढूंढते हैं, पर बहुत बार क्या होता है सीआरएम में ऑलरेडी क्रिएटेड होती है वो कंपनी। पर ये सिर्फ डिसिप्लिन का इश्यू है सर। यूजर्स अलग अलग होते हैं, 10 यूजर्स हैं, अब किसी और के पास फोन आ गया और कंपनी किसी और के में बनी हुई है तो वो नहीं करते हुए वो लोग डेटा डाल दे रहे हैं, हाँ सर्च कर ही नहीं रहे। और दूसरा ये होता है, देयर आर 2 things टू बी डन। एक ये कि एंट्री करते वक्त एवरीवन विल टेक केयर कि आई एम नॉट क्रिएटिंग ए डुप्लीकेट डेटा। दूसरा ये कि कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति हर हफ्ते चेक करेगा कि भाई गड़बड़ तो नहीं है किधर। ठीक है, वही तरीका है, क्योंकि सर उसके पास सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है, तो उसके सिस्टम में तो वो दिख नहीं रही होती। अब वो बाद में ही करे, एक हफ्ते में एक बार डेटा चेक हो, वही तरीका लगता है मेरे को तो सही। मतलब आप ऐसा मानो ना कि ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत है फिर भी रोज नहाती है, शायद दिन में 2-3 बार नहाती है। मेरे जैसा आदमी नहाता है तो समझ में आता है कि मतलब दिखता है ऐसा, इसलिए नहाना पड़ता है। वो क्यों नहा रही है? वो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, साफ सफाई तो करना ही पड़ेगा। विनीत भाई, यू वांटेड टू आस्क समथिंग और से समथिंग। सर आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी लाने लगे दिनेश भाई। नहीं नहाती तो होगी ना यार। नहीं, आपने बोला शायद 2 बार नहाती, तो मुझे लगा कि कॉन्फिडेंशियल ले आया। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लाइटर नोट यार। ये चैटबॉट मुझे स्टडी करना था, तो आपने जो रूल सेट किए वो मैं चेक कर सकता हूँ ना? हाँ करो ना, वो सीधा नहीं तो आपको बहुत सारे मैसेजेस आ जाएंगे मेरे। मेरे यहाँ ना लिमेश भाई, एक एजेंट का ड्यूटी है, सुबह आके पहला काम है कल से लेके आज तक जितनी लीड आई उसको क्लीन करने का, क्योंकि वो उस दिन नहीं होती है तब तक वो कस्टमर का एक और आ गया, कुछ और आ गया, दूसरे में उसने ईमेल आईडी बदल दी, फिर जिसने उससे बात की उसने दूसरे पे टेक कर दिया, दूसरे ने जाके अकाउंट दूसरे से खोल दिया, 3, 4, 5 हो जाते हैं। तोष्णीवाल जी, आई विल लाइक टू इंटरप्ट यू हियर। अच्छा, मैं आप सबको बताऊं कि तोष्णीवाल जी से बहुत पुराने मित्र हैं मेरे, और क्लाइंट ही थे, उसमें से मित्र हो गए। हम दोनों के बहुत सारे ख्याल मिलते हैं,
और अगर आप लोगों को ना ये डिसिप्लिन के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में कभी डिस्कशन करना ना, वी शुड हैव वन सेशन फ्रॉम तुष्णीवाल जी, ठीक है। ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत कुछ किया है, ये बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या क्या कर चुके हैं अभी, ठीक है। एंड ही रन्स कंपनी कॉल्ड प्रो स्टॉक्स, विच वाज आई थिंक फर्स्ट फ्लैट फी स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया ना। और इनके फर्स्ट ट्रू फ्लैट फी ब्रो डॉक्यूमेंट में जो लिखा है ना, ये ऐसा होता है, 110% वैसा ही होगा। और अगर वैसा नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट बदल दिया गया होगा कि अभी से ये होने वाला है। मेरे यहाँ लिमेश भाई आज भी कल्चर है, अगर कस्टमर का फोन आया और नाराज है तो पहला वर्ड ये होता है सर कि फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इज गारंटीड। अब बिल्कुल शांत हो जाए, ये गारंटीड है। एट प्रो स्टॉक्स फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इज गारंटीड। यस, राइट। अब बोलो आपकी प्रॉब्लम क्या है, सुनने के लिए बैठे। तो जो ऑटोमेटेड फीडबैक वाला कंसेप्ट है ना, उसमें भी मेरा परसेप्शन ये है कि फीडबैक आया और अगर कोई दिखता नहीं है, यूर सी इन इंडिया अपने को खास ही आदत है, हम मतलब वैसे लोग हैं कि खाना खाने बैठे ना तो 3 जन को वहां खड़ा रखते हैं कि भाई मुझे कुछ जरूरत पड़ा तो आना, मतलब वी आर सो accustomed टू दैट काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है। और अगर किसी कस्टमर को जिसने पैसा दिया है हमको, उसको ना इससे बात करना पड़े चैटबॉट से। मैं जो बता रहा था लिमेश भाई, ये जो लीड क्लीन करने का जो सिस्टम है ना, बहुत मस्त है। मतलब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर एक बंदे का ही ड्यूटी है कि भाई कल से आज तक का जितना लीड है क्लीन कर, ताकि 5, 10, 15 लोग उसमें जो काम कर रहे हैं ना, तो उनका टाइम खराब हुए ना, वो नया मैश क्रिएट करें। यस। एक आदमी जाके एक लीड पे लिखता है कि कस्टमर का आईपीवी करना है, दूसरा आदमी जाके दूसरा लीड पे लिखता है कि इसका रिफंडेबल डिपॉजिट आना बाकी है। नाउ इफ कस्टमर कॉल्स यू गिव हिम वन इंफॉर्मेशन, राइट, तो वो क्लीन करना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यस। ठीक है नितिन भाई, आई विल शेयर द लिंक ऑफ टुडेज रिकॉर्डिंग, ठीक है। और मेरा ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप इसमें आते हैं ना, तो बेस्ट आइडिया इज टू अटेंड दिस एंटायर सेशन अलोंग विद द टीम इन सेम रूम, बराबर है। वो बाद में वो वीडियो देख लेंगे ना। मैं आपको ना एक चीज एकदम कंफर्म करके बोलता हूं कि आपने वीडियो शेयर किया, फिर उन्होंने देखा, फिर आपने उनको ये पूछा कि पूरा देखा कि ऊपर ऊपर से, मोस्ट प्रोबेबली द आंसर इज ऊपर ऊपर से। तो हम लोग एनजे में ऐसा लाइन यूज करते हैं कि ऐसा समझना कि समझा सको। सर एक क्वेरी था, बोलो ना। मैंने 1000 बंदे को आज मैसेज भेजा और उन्होंने मतलब चैटबॉट से इंटरेक्ट करके रिप्लाई भी लिया है। अभी उसका मतलब अगर मैं ये इससे सेंड करता हूँ सीआरएम से, तो मैं सीआरएम में डैशबोर्ड में चेक कर सकता हूँ कि हु हैज रिप्लाइड व्हाट एंड ऑल दोस रिपोर्ट्स? नहीं, वहां कुछ नहीं मिलता। आपको खाली टैग मिल जाएगा कि ये इतने लोगों ने आज ये वाला टैग को यूज किया। क्योंकि मतलब जो इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है ना, वो थोड़ा मिसमैनेज, समझ में नहीं आता कि भाई उसको कैसे ट्रैक करें कि आज किसने मेरे साथ चैट किया या ये कैसा हो गया मालूम है धवल भाई? मैं आपको मेरा घर का स्टोरी बोलता हूँ, बराबर है। पहले ये होता था कि 3 माला चढ़ के जाना पड़ता था, तो देयर वाज नो इश्यू, हम सब चढ़ के जाते थे, वी वर ऑल वेरी हैप्पी। बाद में ऐसा हुआ कि लिफ्ट आ गया, तो समटाइम्स किड्स आर अनहैप्पी कि लिफ्ट में है ना सादा पंखा है, एसी नहीं है। तो वो देखना ही पड़ेगा। हाँ किरण भाई, थैंक यू। ऐसा समझो कि समझा सको, ठीक है। आई थिंक वी आर 15 मिनट्स ओवर ड्यू। और अपना तो वो शोले पिक्चर जैसा डायलॉग हो गया कि आप लोगों की बातों में कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। सो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस वी कैन समराइज कर दो सर कि ये अपने सीआरएम से लिंक्ड है, इसका कोई चार्जेस नहीं, जो मैं समझा हूं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें हम लोग चैटबॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग व्हाट्सएप मैसेज अलग अलग सेल्स एग्जीक्यूटिव के फ़ोन से जा सकता है और उन्हीं के पास रिप्लाई आ सकता है और वो अपने अपने चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। जब चैटबॉट्स यूज़र यूज़ करते हैं तो वो एक अपन टैग क्रिएट कर सकते हैं कि किसने क्या किया।
अच्छा, देखा जाए अगर मैं मेरी बात करता हूं तो मैं किसी का अगर चैटबॉट यूज करता हूं मैं, तो मैं एक साथ 8-10 चैट उसके सारे देख लेता हूं फीचर एक बार, मतलब एक तरीका ये। तो सारे टैग्स लाइंड अप हो जाएंगे या लास्ट टैग लाइंड अप होगा? सारे लाइंड अप हो जाएंगे। तो सर घूम फिर के तो फिर वहीं आ गए कि पता तो चला नहीं कि करना क्या है। आप क्यों ट्राई कर रहे हो? क्योंकि आपको ट्राई करना था। जिसको बाय करना होता है ना वो ट्राई नहीं करता है, बिकॉज यू आर जस्ट एक्साइटेड कि भाई ये क्या बनाया चैटबॉट में। सर एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल क्या काफी जनों के मैसेजेस आते हैं हम लोग के पास एज अ वेंडर, एज अ सप्लायर। उसके अंदर भी यही होता है कि अपन एक बार देखना चाहते हैं कि यार क्या क्या है इसके पास है, मतलब दैट इज फॉर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर द बाइंग इंटेंट। इसलिए मैसेज बनाते वक्त, चैटबॉट बनाते वक्त ये भी सोच के देखिए कि बाइंग इंटेंट कैसे मालूम पड़ेगा, है ना। और दूसरा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बोलता हूं, वेदर यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट कैंपेन और यू आर ट्राइंग टू क्रिएट फर्स्ट चैटबॉट, ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक्स। बहुत छोटा, बहुत मामूली, बहुत सिंपल काम करके देखना। कॉम्प्लेक्स ज्यादा बना दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जैसा सोच सकता ना वैसा सोच के चालू करो, फिर धीरे धीरे बिल्टअप करो। ठीक है। सेम थिंग व्हेन आई क्रिएट रिपोर्ट्स आल्सो, या डेटा एनालिसिस करना ना तो भी यही लॉजिक रहता है कि पहले एकदम बेसिक एनालिसिस करके देखो, ट्राई एडिंग फिल्टर्स एंड ग्रुपिंग्स एंड दिस एंड दैट ने, सॉर्टिंग ने और कुछ, तो उसका मजा आएगा। सर बहुत सारे सवाल है, फिर बाद में किसको कनेक्ट करना है? राज जी को करना है या किसी को भी करो। सीआरएम के बारे में ही सवाल है ना तो आप पूरे लिख लो कि इतने इतने सवाल है, एंड देन यू टेल अवर टीम के भाई हमको एक ये करना है मीटिंग। और पहला चीज ये है कि इफ यू आर गोइंग टू सेंड ऑटोमेटेड मैसेजेस और एनीथिंग फ्रॉम दिस, वो टीम का डिसिप्लिन वाला इश्यू है ना, कि मैं भूल जाता हूँ, मेरी टीम भूल जाती है और मैं टीम को याद कराने का भूल जाता हूँ। इसको तो पहले ही सॉल्व कर देना पड़ेगा, भूलेंगे तो कुछ नहीं, because there is no way to handle that. सर एक बेसिक एटिकेट्स पे लीजिएगा सर कि कितने टाइम में जाना चाहिए मैसेज और क्या मैसेज जाना चाहिए। आपने शुरू में स्टार्ट में थोड़ा बताया भी अभी आज के सेशन में, पर इस बेसिक एटिकेट्स के ऊपर भी थोड़ा सा लीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है मैसेजेस इतने आते हैं आजकल, तो वो हाइजीन, बेसिक हाइजीन पे भी दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। ये ना ऐसे सोच के चलो कि आप खुद रिसीव करने वाले हो, हाउ वुड यू लाइक टू बी, मतलब राजा पोरस का डायलॉग था ना वो वाला, कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, तो बोले एक राजा एक दूसरे राजा के साथ करता है वैसा। हाउ वुड यू लाइक टू ट्रीट योर कस्टमर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। मतलब समझो मुझे फोन करके ना 1800 रुपया महीने साल का, उसमें 20 यूजर का सीआरएम बेचने का कोशिश करता है, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि उनका कोई तैयारी नहीं है। आई गेट अनॉयड विद दैट। रिसर्च करके फोन करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं लोग। या मैसेज आता है वो गुड मॉर्निंग का, गुड इवनिंग का, सर इवन ग्रीटिंग्स भी नॉनसेंस है, कोई मतलब ही नहीं। मैसेज भेजना है ना तो 2-3 क्राइटेरिया रख सकते हैं। पहले तो ये सोचना है कि ऐसा कुछ मैसेज भेजा जाए जो सामने वाले को यूजफुल हो, उसको मिलने के बाद अच्छा लगे कि हाँ ये मस्त भेजा है। कोई इवेंट आ रहा हो आगे, कोई एग्जीबिशन आ रही हो या कोई इस तरीके का इवेंट हो या ना, वो जो आजकल सोशल मीडिया में ब्लॉगर और वो सब होते हैं ना, तो उनका कैसा रहता है, रोज सुबह उठ के उनको इस बात का स्ट्रेस होता है कि यार कुछ तो भेजना पड़ेगा करके, पोस्ट करके कि उनके पास कुछ पोस्ट करने लायक होता है, दे फील दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आज कुछ तो पोस्ट करना ही पड़ेगा। स्टार्ट हंटिंग फॉर क्या पोस्ट करूं, फिर वो भंगार चीजें पोस्ट में आती है। Okay, so I think we will end this here. If you have any other questions, अभी तो आपके पास हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है ग्रीन टिक वाला, उसके ऊपर कर सकते हैं, या मेरा नंबर तो आपके पास है ही, आप मुझे भी कर सकते हैं। एंड मैसेज करके ये मत पूछना यार कब बात करें, फोन कर लेना, अब मैं नहीं उठाऊंगा तो वापस फोन करूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, यू ऑल हैव बीन अ फैंटास्टिक ऑडियंस, बहुत मजा आया आप लोगों की बातों में। और शाम का डिलीशियस लंच है, उसको भूलना मत, डिनर है सॉरी, आपके घर पे। सो हैव फन, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।